हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज फार्मियोनिक कम्यूटेशन रिलेशंस यूजिंग द सेकंड क्वांटाइजेशन नोटेशंस। ओके, तो प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये वीडियो जहाँ पे मैं बोसोनिक जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो प्रूफ किया था। ठीक है, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फार्मियोनिक कम्यूटेशन रिलेशन प्रूफ करने के टाइम पे हमें कुछ सटलिटीज ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। तो वो मैं इस वीडियो में ईच एंड एवरी स्टेप क्लियरली डिस्कस करूंगा। ठीक है, एवरी स्टेप में डिटेल्ड डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कैसे कम्यूटेशन रिलेशन फॉर्म होता है। एंड दैट कम्यूटेशन रिलेशन लुक्स समथिंग लाइक दिस: ए जे ए एल dagger, its anti-commutation is equals to 0 for fermionic case. While for bosonic cases we have discussed that this will not the case. For bosonic case the commutation relation was something like this, right? Means its commutation was equals to the sorry, this was not 0, this is Kronecker delta JL. Okay, so okay, so why this happens for Fermionic cases? Let's discuss that. Now, you can easily understand from here for the bosonic case, the action of ALAJ dagger and AJ AL dagger, right? Sorry, AJ dagger and AL on any state psi is just same because of this relation, right? But that is not happening for fermionic commutation relations. Now, the main fundamental uh, difference is the Pauli exclusion principle here. The Pauli exclusion principle, due to that, we can say that any state there is some a system of fermions, so and these are some excited states of that system. So at any state or at each state there can be only one fermion, or there can be no fermion, that is zero number of fermions. Now in occupation number representation in second quantization, we use occupation number representations to define a state. Means suppose a state is denoted, suppose like this is 0 0 and dot 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 n j comma 0 0 comma 0 0, something like this. So this means that these are denoted with, this is ground state, this is first excited state, and dot dot dot, this is the jth excited state, like this is the suppose jth excited state. So in the jth excited state there are nj number of particles. This we have discussed for the bosonic case, right? And so on. But here this nj will be 1 either, or can be 0 only. Because of Pauli's exclusion principle, there can be only one particle or there can be 0 particle. Okay, now, okay, so you can easily understand from this that for one state, okay, this is for multi-state system, but for one state system, this is simply something like this. This is the annihilation operator acting on this state. This state means one, in this state there is only one number of particles in that state. So when annihilation operator acts on that, it will just become 0 state. And when the creation operator acts on this state, this thing, okay, when creation operator acts on this, it just generates one state. Now, okay, now there is okay, uh, now there is no need of the prefactor here, because you can understand that this is root over n plus 1, 0 plus 1 means 1, and this is root over n means just 1. So the prefactor is not needed here. But here is a very important thing to understand, that the zero gate or the zero or null state is different from the zero, normal zero. Means if you act a0 on a 0
or null ket, okay, or rather if you apply a creation operator on a on this ket, that is there is one particle in any ket in any state, and you are applying a creation operator and that in that state, then obviously due to Pauli's exclusion principle, it will try to generate a particle on that state, right? But it can't because of the Pauli's exclusion principle. So the result will be it is not obeyed, right? It cannot generate a particle. That means it is zero. It is simply zero, not zero ket or not zeroth state. It is simply zero, completely zero. Means this is violated. This is not valid operation. It is denoting that. Means if you now apply like this, here we have applied the annihilation operator on the state with one particle, and then again apply a creation operator on that state, and we are getting the one particle in that state again back. That is this. But here in this case it will not happen. Means after this operation, if you apply a what you apply, if you apply any of them, means a annihilation operator or a creation operator, whatever, apply on this thing, this now zero, give you obviously zero, because it is not a state, okay, it is simply zero. So this is the difference between these two things. Okay, now now coming to the main thing, how to prove this relation, right? How to prove this commutation relation. So for that we have to part-wise divide it. First act AL dagger and AJ. Okay. Now important thing, that AL dagger, suppose, okay, acting on a multi-state ket, okay, gives what? Suppose there are n0, n1, n2, ठीक है. सो दिस ये सब क्या डिनोट कर रहे हैं? हमें ये सब डिनोट कर रहा है कि जीरो स्टेट में एन नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, फर्स्ट एक्साइज स्टेट में एन वन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ऐसे. तो ऐसे ही हमारे पास एन एल भी होगा, ठीक है, मतलब एल एच स्टेट में एन एल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सपोज. सो ये क्या करेगा, ये एन एच स्टेट का जो पार्टिकल नंबर है उसे n प्लस वन कर देगा. ये मैं जनरल बोल रहा हूँ. यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हर जो चीज में दिखा रहा हूँ, लाइक इन वन इन टू, ये सब चीज आइदर जीरो होगा या फिर वन होगा, ठीक है. तो ये चीज मैं बोसोनिक केस में दिखाया था. तो यहाँ पे ये जब अप्लाई होगा, ठीक है, इन जनरली मैं लिख रहा हूँ, तो ये जब हम अप्लाई करेंगे n0 n1 में, समझने के आसानी के लिए सब कुछ को n से ही डिनोट करो, ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं ये जीरो या फिर वन ही होगा ये सब का वैल्यू. तो n0 n1 ऐसे एक स्टेट है, n j है इसमें, ठीक है, n j प्लस वन भी है इसमें, लेकिन n l माइनस वन भी है इसमें, लेकिन n l नहीं है, ठीक है, n l इसमें नहीं है, n l प्लस वन इस टाइप का कोई एक सिस्टम है. और यहाँ पे एलेथ स्टेट जो है ये इट इज ग्रेटर देन जे स्टेट, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है. नाउ हम क्या करेंगे, हम इसे अगर अप्लाई करें, फर्स्ट इसे अप्लाई करना पड़ेगा हमें. तो फर्स्ट इसको अप्लाई करने के पहले फर्स्ट आप इसका ऑपरेशन समझ ले. मतलब हाँ, तो हमारा एल जब एल तो हमारा एल डैगर जब एक्ट होगा इस ये टोटल स्टेट पे, ठीक है, टोटल स्टेट पे जब हमारा एक्ट हुआ तब क्या होगा कि इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे एक्साइटेड स्टेट्स हैं कोई एक सिस्टम का, ठीक है, और ये है सपोज एलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है. तो एलेट एक्साइटेड स्टेट में एक पार्टिकल को ये जनरेट करना चाहेगा, तो उसे कैसे जनरेट करेगा? पहले एल स्टेट तक जाने के लिए हम इसे हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनालॉजी से समझ सकते हैं कि
पहले उसे एक पार्टिकल जनरेट करना पड़ेगा इन द ग्राउंड स्टेट, राइट। ग्राउंड स्टेट में एक पार्टिकल जनरेट करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, इसे एक्साइटेड करते 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 उसे एलेथ एक्साइटेड तक ले जाना पड़ेगा। मतलब ये पार्टिकल को यहाँ पे जनरेट किया, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे जो पार्टिकल है इसके साथ एक्सचेंज किया, तो फिर क्या होगा, ये पार्टिकल ऊपर आ जाएगा। फिर इसके साथ ऊपर का पार्टिकल के साथ एक्सचेंज किया, फिर ये पार्टिकल ऊपर आ गया हमारा नया पार्टिकल। ऐसे करते करते एलेथ एक्साइटेड स्टेट तक ये पार्टिकल आ जाएगा। दैट मीन्स वी हैव टू फर्स्ट जनरेट द पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट। मीन्स इन जीरो जो है यहाँ पे हमें एक पार्टिकल ये जनरेट करके देगा, इसका एक्शन है ये, ठीक है। तो ये हमें इक्वल टू देगा क्या, हमें फर्स्ट ये देगा एक n0 के पोजीशन पे, ठीक है, एक नया पार्टिकल दिया, ठीक है। अब और बाकी सब ऐसे ही है, ठीक है, n1 n2 ऐसे ही है। अब क्या करेगा, हर एक एक्सचेंज, अब क्या करेगा, ये एक्सचेंज करते करते एन एल की पोजीशन तक जाएगा ना। एन एल यहाँ पे मैंने बोल रहा था पहले कि यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्यों पार्टिकल नहीं है, अगर पहले से यहाँ पे एक पार्टिकल है, ड्यू टू फार्मियोनिक स्टेट वी आर राइटिंग दैट फार्मियोनिक स्टेट, राइट। ड्यू टू फार्मियोनिक स्टेट एल डैगर जब यहाँ पे ऑपरेट करेगा तब क्या होगा, ये कंप्लीट, ये टोटल एक्सप्रेशन ही जीरो हो जाएगा, राइट। तो मैं पहले डिस्कस किया था यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये जीरो हो जाता है। तो इसलिए मैं बोला था कि ये जो पहले हम स्टेट ले रहे हैं यहाँ पे एल एल स्टेट पे कोई भी पार्टिकल नहीं है, जीरो है पार्टिकल। तो अब एक वेरी इंपॉर्टेंट थी कि फार्मियोनिक जो वेव फंक्शन होता है हमारा वो एंटीसिमेट्रिक होता है, एंड एज अ रिजल्ट हम जानते हैं कि जब दो पार्टिकल का एक्सचेंज होता है, ठीक है, पोजीशन इन फार्मियोनिक वेव फंक्शन, देन क्या होता है, हमें एक नेगेटिव साइन मिलता है, -1 मिलता है। तो हर एक जो एक्सचेंज है पार्टिकल का, और हर एक एक्सचेंज के लिए हमें एक नेगेटिव साइन सामने आएगा। मीन्स ये सपोज एक फर्स्ट एक्सचेंज हुआ, ये यहाँ पे गया, तो इसके लिए एक -1 बाहर आ जाएगा, और हमारा टोटल वेव फंक्शन, टोटल स्टेट ऐसे ही रहेगा। सिमिलरली इसके बाद ऐसे एक और एक्सचेंज होगा, ऐसे करते करते एन एल तक, एन एल में जीरो है एक्चुअली, ठीक है, एन एल के पोजीशन तक जाएगा हमारा ये पार्टिकल, नया पार्टिकल। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारा हमारे एक्सचेंज होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। सपोज एन एल एल जो स्टेट है ये हमारा है सपोज 3। तो फर्स्ट क्या होगा कि क्या क्या एक्सचेंज होना पड़ेगा, फर्स्ट 0th लेवल के साथ फर्स्ट का हुआ, फिर पार्टिकल गया फर्स्ट में, ठीक है, 0 से फर्स्ट में गया, फिर फर्स्ट से सेकंड में गया, फिर क्या होगा, सेकंड से, समझ गए ना आप, फिर सेकंड से थर्ड में गया, राइट। तो ये 3 एक्सचेंज हमें करना पड़ेगा, फर्स्ट 0 ग्राउंड स्टेट से, ओके, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट में गया, फर्स्ट से फिर सेकंड के साथ, सेकंड से फिर थर्ड के साथ, तो एल इक्वल्स टू 3 पे ये पहुंच गए। तो फिर -1 हमारा कितना सारा एक्सचेंज आया टोटल, -1 होल टू द पावर 3 मीन्स इन जनरल एल, ओके। तो ऐसा आएगा, एंड देन द state get as it is, then you can understand now similar fashion में हम, ठीक है, अब हम इसको कर सकते ए, ओके, पहले हम इसको ही निकाल लेते हैं, ठीक है, तो समझने में आसानी होगा। ए जे ए एल डैगर एक्टिंग ऑन दैट टोटल किट, ओके। क्या होगा हमारा, ए जे को एज इट इज रख दीजिए, पहले इसका ऑपरेशन है ये -1 होल टू द पावर एल, और यहाँ अंदर जो है जैसा है एकदम सेम रहेगा, सिर्फ हमारा क्या होगा, जहाँ पे एल स्टेट था वहाँ पे 0 था, वहाँ पे एक पार्टिकल आ जाएगा एट द एन एच स्टेट। एन एल से मैं क्या डिनोट करूँ, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, तो एन एल स्टेट में हमारा एक पार्टिकल आ जाएगा। अब क्या होगा, अब ए जे यहाँ पे एक्ट करके, राइट, तो -1 होल टू द पावर एल पहले है, अब ए जे भी, अब ए जे को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि क्रिएशन ऑपरेटर क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है पार्टिकल को, एंड देन दैट पार्टिकल इज एक्सचेंजिंग विद द अनदर पार्टिकल्स एंड गेटिंग टू द हायर
एक्साइज स्टेट, राइट, एलएच स्टेट तक गया ऐसे एक्सचेंज करते करते। ऐसे ही जब एनिहिलेट होगा तब वो सपोज जेथ स्टेट में हम एनिहिलेट कर रहे हैं तो जेथ स्टेट में जो पार्टिकल पहले से था, राइट, दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड बिफोर दैट जेथ स्टेट में एक पार्टिकल पहले से था, ठीक है। तो पहले से जो पार्टिकल था मतलब जेथ इन जे इक्वल्स टू 1 था, एक पार्टिकल था, तो वो ऐसे एक्सचेंज करते 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 फर्स्ट वो ग्राउंड स्टेट तक आए। फिर क्या होगा, ये जब ऑपरेट करेगा तब वो ग्राउंड स्टेट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको जीरो कर देगा। मतलब एक्चुअली इस टाइप से, मतलब इसको क्रिएशन को आप अच्छी तरह से ऐसे समझ सकते हैं, एनिमेशन को भी इस टाइप से आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो सिमिलरली जे स्टेट के लिए ऐसे एक्सचेंज आएगा, जे नंबर ऑफ एक्सचेंज होगा और हमारा स्टेट कुछ इस टाइप का आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, एन जे माइनस वन भी सेम रहेगा। फिर एन जे में जो एक पार्टिकल था वो पार्टिकल यहाँ पे जीरो हो जाएगा एन जे की जगह पे, एंड देन एन जे प्लस वन एंड देन एज इट इज, एंड देन एन एल, मतलब यहाँ पे वन पार्टिकल है एंड देन एज इट इज, इस टाइप का होगा। अब लेट अस डिस्कस द ए एल डैगर एंड ए जे। ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वाई, बिकॉज एल इज ग्रेटर देन जे। क्यों, मैं डिस्कस करता हूँ अभी। ये यहाँ पे ये केट है, अब क्या होगा, ये ये पहले एज इट इज माइनस वन होल टू द पावर जे आएगा, और जे स्टेट में जो पार्टिकल है वो स्टेट आएगा, जे स्टेट इन जे में जो पार्टिकल है वो अब जीरो हो गया, ठीक है। और इन एल में जो पार्टिकल है वो वहां पे ही है, ठीक है। अब ए सॉरी इन एल पे कोई पार्टिकल नहीं है। अब क्या होगा जब ए एल डैगर इस पे ऑपरेट करेगा, ठीक है, तब क्या होगा, एक पार्टिकल को यहाँ पे जनरेट करेगा फर्स्ट और फिर एक्सचेंज होता रहेगा। फिर क्या होगा, हमें माइनस वन होल टू द पावर जे, फिर माइनस वन। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एन जे है, एन जे स्टेट में एक पार्टिकल पहले से एनिहिलेट हुआ हुआ है, मतलब ना ये क्या होगा कि ए एल डैगर जब ऑपरेट करेगा यहाँ पे एक पार्टिकल जनरेट करेगा ग्राउंड स्टेट में, फिर वो एक्सचेंज होता रहेगा, राइट। बट एज इन जे जो है, इन जे पहले ऑपरेट कर गया, मतलब जे स्टेट जे पोजीशन पे हमारा पार्टिकल अब है ही नहीं, एक पार्टिकल था वो चला गया ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ जे फर्स्ट, ए जे फर्स्ट। तो क्या होगा, यहाँ पे कोई एक्सचेंज की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टिकल ही नहीं है। तो हमें टोटल कितना एक्सचेंज करना पड़ेगा, एल एच स्टेट तक पहुंचने के लिए ये नया पार्टिकल को टोटल हमें इन सॉरी एल माइनस वन एक्सचेंज करने पर ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल ही नहीं है। ओके, देन माइनस वन होल टू द पावर जे, एंड यहाँ पे नया आएगा, इसका ऑपरेशन का कारण एल minus one number of exchange आएगा, and then we'll get the state something like this। ये हमारा है nj, and then nl nl minus one and then nl, ठीक है। then this now ये क्या करना पड़ेगा आपको, अब ये जो दो एक्सप्रेशन मिला, ये और ये दोनों को जस्ट ऐड कर दीजिए। तो आप समझ सकते हैं ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑब्वियसली आपका इस टाइप का कुछ रिलेशन आ जाएगा, ए जे एंड ए एल डैगर, इसका एंटी कम्यूटेशन, राइट। ये डेफिनेशन होता है एंटी कम्यूटेशन का, दिस प्लस दिस एंटी कम्यूटेशन बोला जाता है इसको, या फिर इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ए जे एंड ए एल डैगर, इसका प्लस मीन्स अंदर एक प्लस है दोनों का, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे आप समझ सकते हैं, देखिए ये दो स्टेट तो सेम है, अब ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब सपोज सपोज ये क्या है, माइनस वन होल टू द पावर एल प्लस जे, और ये क्या है, माइनस वन होल टू द पावर एल प्लस जे माइनस वन। सपोज एल प्लस जे हमारा इवन है सपोज, तो फिर ये क्या होगा, हमारा इवन वन होगा।
लेकिन as l plus j is even, then l plus j minus 1 will definitely be odd, right? ये हमारा odd हो जाएगा, मीन्स इससे हमारा क्या होगा, -1 आ जाएगा। मीन्स ये दोनों का जब आप ऐड करते हैं, चलिए इसके अच्छे से लिखता हूं मैं। तो ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कुछ इस टाइप का आएगा, -1 होल टू द पावर l प्लस जे प्लस -1, ये कौन सा है, ये यहां से आया, प्लस ये मैं लिख रहा हूं, प्लस -1 होल टू द पावर l प्लस जे -1, ये जो था, एंड देन द स्टेट एज इट इज। ठीक है, ये स्टेट यहाँ पे आएगा। तो फिर ये क्या होगा, ये अगर इवन है तो फिर ये हमारा देगा 1, प्लस ये हमारा तब हो जाएगा ऑड, क्योंकि ये अगर इवन है, सपोज l प्लस जे इज इक्वल्स टू 4, देन l प्लस जे माइनस 1 इज इक्वल्स टू बट, देन ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा टोटल, मीन्स ये ऑड हो जाएगा, माइनस मतलब ये -1 देगा। या फिर रिवर्सली ये अगर हमारा ऑड हुआ, सपोज ये हमारा 3 हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा इवन, मतलब ये -1 अगर रिजल्ट देगा तो ये +1 रिजल्ट देगा, मतलब ये एंड देन दिस देन गेट बैक, मीन्स ये हमारा हो जाएगा अल्टीमेटली 0। मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो रिलेशन था ए जे ए एल डैगर, ये एंटी कम्यूटेशन रिलेशन इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा फर्मियन के केस में होता है। अब ऐसे ही अब दो और रिलेशन आप इजीली प्रूव कर सकते हैं, एंड दैट रिलेशंस आर ए जे ए एल, इसका जो एंटी कम्यूटेशन है ये भी 0 होगा, एंड ए जे डैगर और ए एल डैगर, इसका जो एंटी कम्यूटेशन होगा ये भी हमारा 0 होगा। सो आई होप you have got the point, that how the commutation relation of the fermionic state is coming. So share this video with your friends and take care of yourself. Thanks for watching.